Hello, good morning all. My name is Omkar Mawade. I am from NIT Polytechnic, Nagpur. Now I am presenting PPT presentation in our final year project. The title of Fabrication of Multipurpose Agriculture Machine. First of all, I introduce my team members Rahul Maske, Ganesh Kaude, Saurabh Raut, Ajay Charpe. And this project guide is Mr. Samish Phale. Next slide. Next, next slide, please. This is our PPT presentation content. Next slide. Now I am presenting introduction. India stands second in worldwide in farming sector. Agriculture product plays very important role in our life. But it but in India, many middle level farmer, poor farmer, they are not able to purchase costly equipment, and many farmer are also used manual labors and animal for farming. Therefore, for the development of agriculture by new technology is that the human and animal effort can be replaced by advanced mechanization. So we are fabricate new machine, fabrication of multipurpose agriculture machine. In this machine, we are use petrol engine. By this engine, many operation perform like seed sowing, grass cutting, pesticide sprinkling, and we can also use for farming by some adjustment bed making, tiller, harvesting. Next slide present my friend Saurabh Rao. Thank you, Omkar. Good morning. I am Saurabh. Good morning, sir. I am Saurabh Raut from NIT Polytechnic, Nagpur. I start my project literature review. For making this project, we are collect many research paper related to multi-purpose agriculture machine, and I study this research paper. In all, this research author says the lack of mechanism is for middle level farmer. So we are making new technology and low cost machine for middle level farmer for performing seed sowing, spraying, tilling, and also performing many more operation in farming. So we are, by taking references by this research paper, we are fabricate our new machine. Next slide, please. Project problem identified. After studying this research and finding problem in agriculture sector, we identify the following problems, such as the cost of mechanization equipment is very high, and for doing farmings required more manpower. Thank you, Saurabh. My name is Ajay Charpe. I am from NIT Polytechnic, Nagpur. This presentation slide, it aims an objective: the fabrication of multi-purpose agriculture machine for performing the agriculture operation like as seed sowing, pesticide spraying, grass cutting, tilling, and cultivating. The objective of this machine, it is the beneficial for the farming sector to reduce the human and animal effort, easy to farming work, and small scale farmer easy to purchase this machine. It is used in other type of grass cutting, in such as garden, lawn, short time, and more work should be done. Next slide. And this is block diagram on fabrication of multipurpose agriculture machine. Next slide present my friend Rahul. Next slide. Good morning, guys. My name is Rahul Maske. So I am start from the construction and working of agriculture multipurpose agriculture machine. इस मशीन का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा है कि मैं आपको उसको डिटेल से बता नहीं सकता, इसलिए मैं आपको इसको सिंपली तरीके से समझा सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मशीन के कंस्ट्रक्शन से। इस मशीन का कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया गया है जैसे कि बैलगाड़ी में जैसे दो व्हील्स होते हैं पीछे की ओर, वैसे हमारे मशीन में भी दो व्हील्स पीछे की ओर लगाए गए हैं। थ्रू शाफ्ट और बेरिंग के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है। जैसा बैलगाड़ी को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए जो बैल के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू जो पावर लिया जाता है जिससे मशीन को ड्राइव किया जाता है, उसी तरह हमारे मशीन को ड्राइव करने के लिए हम इंजन से पावर लेते हैं। इसमें एक पेट्रोल इंजन
माउंटेड किया गया है, जो मशीन के फ्रंट साइड पे इंक्लाइन प्लेस पे माउंट किया गया है। उसके थ्रू एक क्लच हाउसिंग और शाफ्ट को कनेक्ट किया गया है, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस इंजन में से डेवलप होने वाला पावर को ट्रांसफर करेगा जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए। वैसे एक बेस इसके पीछे, मशीन के पीछे साइड पर, बैक साइड पर बनाया गया है, जिसपे सीड सोइंग असेंबली या फर्टिलाइजर स्प्रेइंग असेंबली को माउंट किया जा सके। और उसी के साथ में इसको एक हैंडल दिया गया है जो मशीन के बैक साइड में लगाया गया है। उस हैंडल पे एक एक्सीलेटर दिया गया है और एक्सीलेटर को थ्रू एक्सीलेटर केबल इंजन से कनेक्ट किया गया है, जो इंजन से पावर डेवलप होगा उसको कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं ग्रास कटर ऑपरेशन की। इस ऑपरेशन के दौरान जो ग्रास कटिंग मैकेनिज्म है उसको, जो इंजन से शाफ्ट निकला है क्लच हाउसिंग के पास से, उस शाफ्ट को कनेक्ट करना है। और इस असेंबली को चलाने के लिए जो पावर है वो इंजन के थ्रू दिया जाएगा, जिससे ग्रास कटर चलेगा। और इस ऑपरेशन के दौरान जो मशीन है वो ड्राइव होंगी मैनुअली, जैसे कि हाथ ठेला को मैनुअली चलाया जाता है, उसी तरह ऑपरेटर के द्वारा इसको मैनुअली चलाया जाएगा। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड स्प्रिंकलर असेंबली की। इस ऑपरेशन के दौरान जो पेस्टिसाइड स्प्रिंकलर की असेंबली है उसको माउंट किया जाएगा मशीन के बैक साइड पे, जो क्लैम्प की मदद से क्लैम्प किया जाएगा। उसके बाद में जो मशीन को, जो अपन ग्रास कटर असेंबली लगाए थे, वो उस ग्रास कटर असेंबली को वहां से रिमूव करके वहां पर एक गियर हेड लगाना है। जो गियर हेड में एक दो फ्रंट व्हील को कनेक्ट करना है और लॉक पिन से उसको लॉक कर देना है। इस ऑपरेशन के दौरान जो मशीन है वो, जो इंजन से पावर डेवलप होगा वो पावर जाएगा क्लच हाउसिंग के मदद से गियर हेड पे, और व्हील्स रोटेट होंगे। उस व्हील के रोटेशन के कारण मशीन ड्राइव होंगी, उसके साथ में बैक व्हील भी रोटेट होंगे। अब बात करते हैं इस मशीन में ऑपरेशन कैसे होगा। तो जो बैक व्हील से जैसे वो रोटेट होंगे फ्रंट व्हील के साथ में, तो जो रोटेशन का जो पावर है वो हम ट्रांसफर करेंगे पीछे के साइड पे। एक गियर दिया गया है जो बेरिंग्स और शाफ्ट की मदद से उसको माउंट किया गया है। थ्रू चेन एंड स्प्रॉकेट मैकेनिज्म वो पावर हम उस गियर तक पहुंचाएंगे, और उस गियर से जो पावर आएगा उस पावर को हम ट्रांसफर करेंगे पेस्टिसाइड स्प्रिंकलर के पिस्टन तक थ्रू कैम ऑन फेलोवर मैकेनिज्म। जैसे ये पावर वहां तक पहुंचेगा, उसके बाद में जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट होना स्टार्ट करेगा, और जो पावर डेवलप होगा उससे रेसिप्रोकेटिंग से वहां से वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब बात करते हैं सीट स्विंग मैकेनिज्म की। तो ये पूरी असेंबलीज अपन को वहां से रिमूव करके वहां पे सीट स्विंग असेंबली जो पीछे का बेस है वहां पे माउंट करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये ऑपरेशन भी सेम इसी की तरफ परफॉर्म होगा। इसमें भी मशीन फ्रंट व्हील से ही ड्राइव होंगी। बस जो सीडर है उसको पावर देने के लिए मशीन के जो बैक व्हील्स थे वहां पर जो शाफ्ट है वहां पर एक गियर कनेक्ट किया गया है मिडल में। उस गियर से जो रोटेशन से जो पावर डेवलप होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा चेन के मदद से सीडर के गियर तक। और इस मशीन को चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो इंजन से ही डेवलप होगा। अब बात करते हैं कल्टीवेशन एंड सॉइल कल्टीवेशन एंड टीलिंग ऑपरेशन या बेड मेकिंग। इस ऑपरेशन के दौरान सभी असेंबलीज को वहां से रिमूव करना पड़ेगा, और जो व्हील्स है फ्रंट व्हील्स उसको भी वहां से रिमूव करके जो कल्टीवेशन या बेड मेकिंग के जो ब्लेड्स आते हैं उस ब्लेड को वहां कनेक्ट करना पड़ेगा, और लॉक पिन की मदद से उसको वहां पर कनेक्ट करके लॉक पिन से लॉक कर देना पड़ेगा। जैसे कि व्हील रोटेट हो रहे हैं इंजन के पावर से, उसी तरह वो ब्लेड्स भी रोटेट होंगे और वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, साथ में मशीन को भी ड्राइव करेगा। अपन हमारे पास में इस वीडियो को टाइम लिमिट नहीं होने के कारण मैं इसको आपको सिंपल और शॉर्टकट तरीके से समझाया हूँ। और आपको अगर इसकी पूरी ऑपरेशंस को देखना है तो हमने एक वीडियो बना के लिंक नीचे प्रोवाइड कर दी है, उस लिंक के माध्यम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंटेड बाय माय डियर फ्रेंड गणेश। Morning everyone, my name is Ganesh Kaude. I am from NIT Polytechnic Nagpur. This is the comparison between the other agriculture machine and our machine. Suppose we purchase the following machine by performing the operation individual. So the cost of machine, brush cutter is 12,000 rupees, pesticide sprayer is 4,000 rupees, seed sowing machine is 5,000 rupees, and minute power tiller 15,000 rupees. The total cost of that machine are 36,000 rupees, and the total cost of our machine is 23,000 rupees. By this machine, we performing all the above operation by the engine. So cost of our machine is low as compared to the other project, and human and animal effort also reduced by this machine. Please next slide. Next slide, please. So we have conclude the multipurpose agriculture machine is very useful for the poor and rural farmer. It performs many operation by the petrol engine. Please next slide.
These are references for our project. Please next slide. Thank you.